student की class presence चाहिए in my class. I don't want to name the students, just whenever I'm asking, just try to give the answer, okay? So when we started the physics section and we moved to chapter number 2, we discussed about कि motion is categorized into two parts. What were those two parts? Kinematics and dynamics. I told you that chapter number 2 that we have done previously had everything that that we need to understand kinematics at the very basics of everything. Chapter number 3 constitutes the dynamics parts of the motion. Those of you who has just joined the lecture and are new to this class, dynamics and kinematics are basically two types of motion, two categories of motion, I would say, to be exact. We know what motion is. Motion is if a body changes its position with respect to some observer. If I am sitting and some one of my student is observing me, according to that student, I am at rest. Okay, but if that is happening, if I'm sitting in a train and someone is observing me while sitting with me in the train, according to him, I'm sitting. But to the one who is standing outside the train on the platform and train is going by that person, according to that person, मैं क्या कर रहा हूँगा? Move कर रहा हूँगा. So rest and motion, हम लोगों ने last time भी पढ़ा था, are both relative. ठीक है? Motion, whenever there is motion, there is force. Without force, we cannot डिस्कस अबाउट द फोर्स. डायनामिक्स के अंदर आके हम लोग न्यूटन्स के लॉस को डिस्कस करेंगे, विच विल एक्सप्लेन व्हाट डायनामिक्स इज टू बी एग्जैक्टली. देन आई विल टेक यू टू द एक्चुअल थिंग. न्यूटन के लॉज एज इट इज इन आवर सिलेबस इज नॉट हैज अ डायरेक्ट connection with the topic, but in theory and in the marking scheme of the exams questions, you will get to see all about that thing. Okay, there are 3 Newton laws. What are those? Can anyone name 3 Newton laws? मेरी आवाज किसी को भी नहीं आ रही है? Yes, sir. Hurera, Muhammad, I have so many intelligent students in my class. No one knows Newton's first law. Inertia. Yes, Newton's first law is also known as law of inertia. अब हमारी थ्योरी के अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया मल्टीपल प्लेसेस पे जो है वो यूज होगा. ठीक है? So I want you guys to make sure that you understand what inertia explains to us. Whenever we talk about inertia or Newton's first law, they are the same thing. Okay? Newton's first law tells us that when a body continues its state of rest or uniform motion, unless an external force is applied on it. That is, अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मैं बैठा रहूंगा. अगर something is moving, that will keep on moving. But if some external force is applied onto it, then उसकी state को change किया जा सकता है. That is, if I'm sitting, मैं by the application of force move कर सकता हूँ. Without force, I cannot move. और वो force कहाँ आएगी? Externally आएगी. And if something is moving, to stop that, we need to apply the force. That force is external. So the state of the body here, according to Newton's first law, it continues in that particular state until unless an external force is applied onto it. For example, मैंने एक गाड़ी को push किया. After some time, वो गाड़ी रुक जाएगी. ऐसा ही होता है? या वो गाड़ी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है? मैं एक टॉय कार की बात कर रहा हूँ. एक टॉय कार को मैंने पुश किया, आफ्टर सम टाइम वो रुक जाती है. अगर मैं कह रहा हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज सेइंग कि सम एक्सटर्नल फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी टू चेंज द स्टेट. अगर वो बॉडी खुद ब खुद रुक गई, मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया,
how that body stopped. कैसे रुक गई वो बॉडी? friction, फ्रिक्शन. नाउ फ्रिक्शन, वेरी गुड, शाबाश. फ्रिक्शन इज द एक्सटर्नल फोर्स. जो कौन अप्लाई कर रहा है? सराउंडिंग अप्लाई करी ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वो उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी. फ्रिक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. बट डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज? कि बॉडी की स्टेट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वी कैन नॉट चेंज, whether it's state of rest or state of motion. Am I clear to everyone? Okay, no, nothing, no one questioned anything. That means it's so. अब न्यूटन्स फर्स्ट को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? Why do we call Newton's first law as Newton's law of inertia as well? Because inertia is something that is the property of our body. Inertia is what? It is the property of our body, and we define it as a property of a body due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion. Okay, why do we call it a uniform motion? Can anyone justify this point? Acha, balki sorry, I wouldn't ask you guys, but some seniors could try to give the answer. Why do we discuss the uniform motions always? Can anyone try? जैसे constant motion होता है. मोहम्मद, यूनिफॉर्म मोशंस कब होते हैं ऑब्जेक्ट के? yes sir. यूनिफॉर्म मोशन कब सर होते हैं जब ऑब्जेक्ट के? कोई जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर बट रहा हो. हमने फोर्सेस पढ़ी हुई है ना. फोर्सेस की टर्म में अगर हम लोग बोले तो यस यूनिफॉर्म सर. मोशन कब हो रहा होता है? तो जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हों. ठीक है, नॉर्मली हम उसको कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट स्पीड का नाम देते हैं व्हेन रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. बट यूनिफॉर्म मोशन इज समथिंग इफ इट्स continuously changing its motion in regular interval of time, that also accounts for a constant force उसके ऊपर अप्लाई होती है, तभी उसके ऊपर वो वैल्यूज जो हैं यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई हो रही होती है. Anyhow, inertia is the property of a body due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion. If it's a property of the body, that means that property has something to do with the mass of the object. Okay, so inertia is dependent on mass. Inertia is dependent on mass, which means greater the mass, greater would be inertia, lesser the mass, lesser would be inertia. अब inertia ऑब्वियसली अगर एक टॉय कार है वर्सेस एक्चुअल कार है, किस कार को स्टॉप करने में ज्यादा फोर्स लगेगी हमें? खुदा, किस कार को स्टॉप करने में हमें ज्यादा फोर्स लगेगी, टॉय कार को या एक्चुअल कार को? ईमान, फातिमा, किस कार को स्टॉप करने में ज्यादा फोर्स लगेगी? सर एक्चुअल कार को. एंड व्हाई इज दैट? अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जस्ट वी डिस्कस्ड. क्योंकि उसका मैथ ज्यादा होगा. क्योंकि उसका मास ज्यादा है. सो जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा. अब इनर्शिया की एक्चुअल एग्जांपल क्या आती है? अब हमने ये तो बात कर लिया कि इट रेजिस्ट द चेंज. अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हमेशा इस तरीके से डिफाइन की जाती है. इफ यू आर सिटिंग इन अ कार, ठीक है, सडनली कार के ऊपर ब्रेक लगाते हैं हम. व्हाट हैपेंस टू अस व्हेन अ कार इज सडनली अप्लाइड ब्रेक? What happens to us when we suddenly apply the brake on the car? We are pushed forward.
Why do we push forward? Because our body thinks that we were moving in the forward direction and sudden apply of brake में हमारी body ने resist किया to resist that change and it tried to goes in the forward direction. That is what inertia is. अगर हम बस में खड़े हुए हैं, बस अचानक ब्रेक लगाती है, we are pushed forward. ऐसे ही है, अगर हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं, if we are running very fast and we suddenly try to stop ourselves, हम गिरते हैं आगे की तरफ कि नहीं गिरते हैं, या हम पीछे की तरफ गिरते हैं? We are pushed forward. ठीक है? Why is that? Because due to inertia, due to the property in our body, our body resists that change जो externally उसमें लाने की कोशिश की जा रही है. That is why we push forward in the direction. That's why we wear seat belts while sitting in the car. Am I clear about Newton's first law and Newton's and about inertia? Okay. Moving on to the next part. We have Newton's second law. Hurera, what is Newton's second law? F is equal to ma, sir. Newton's second law is F is equals to ma, where F Ma. is force, m is mass, and a is acceleration. Acceleration का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? v minus u over t, where v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, एंड t हमारे पास क्या होता है? टाइम होता है. ठीक है? अब न्यूटन सेकेंड लॉ होता क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ इज, अब देखो बच्चों, हमने डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में क्या मेजर चीज पढ़ी थी कि डायनामिक्स में हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन एंड इन टर्म्स ऑफ थ्योरी दोनों डिस्कस करेंगे. यही पढ़ा था हमने. और काइनेमैटिक्स के अंदर हमने फोर्स को डिस्कस नहीं किया था. ईमान एंड फातिमा, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था सर. कि हमने सर. काइनेमैटिक्स जब हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कहीं पे भी हमने फोर्स का वर्ड यूज किया था? हमने कहीं पे भी फोर्स का वर्ड यूज नहीं किया था. और अभी आप देख सकते हैं सेकंड लॉ के अंदर दोबारा फोर्स की एप्लीकेशन की बात आ गई है, विच मींस डायनामिक्स इज द काइंड ऑफ मोशन जहां पे हम फोर्स की एप्लीकेशन को क्या कर रहे होते हैं? डिस्कस कर रहे होते हैं. व्हेन वी डिस्कस न्यूटन सेकंड लॉ, इट एक्सप्लेन्स अस दैट when a force is applied onto a body, acceleration is produced. अब acceleration क्यों प्रोड्यूस होती है? हमने क्या पढ़ा था बच्चों? acceleration कब प्रोड्यूस होती है? जब चेंज इन वेलोसिटी होता है. Yes, when change of speed occur और डायरेक्शन अकर. ठीक है? स्पीड को हम ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं. ठीक है? अगर हम यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे, इट मींस हमारी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चेंज हुआ है? डायरेक्शन भी चेंज हुआ है. सो हम लोगों का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ क्योंकि हमने जब फोर्स अप्लाई किया, चेंज ऑफ स्पीड हुआ, जिसकी बेसिस पे एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force and inversely proportional to the mass of the object. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इफ वन इंक्रीजेस द अदर इंक्रीजेस. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इफ वन इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस. तो हमें इक्वेशन डेफिनेशन ने क्या बताया? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दैट इज जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. अब क्लियरली अगर हम लोग इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं विद टू ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट masses, किस में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी? फॉर एग्जांपल, इफ आई पुट 1 kg
box versus 10 kg of force 10 kg of box, मैंने दोनों के ऊपर 10 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई किया, which would go faster? Fazil, which one would go faster? The one with the 1 kg mass. Why is that? Because उसका mass was less, equal amount of force apply किया था, so उसका acceleration क्या होगा? ज्यादा. Because less mass, greater acceleration. हमने अप्लाई तो दोनों पे इक्वल फोर्सेस किया था, बट ये मोर एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये लेस एक्सेलरेशन से मूव करेगा. दैट जस्टिफाइज न्यूटन्स सेकंड लॉ. अब न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma है. हमने एक और इक्वेशन भी पढ़ी हुई है. व्हाट इज दैट फातिमा? F is equals to W is equals to mg. mg कब यूज करते हैं? जब फ्री फॉल मोशन होता है या नो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है, तो एक्सेलरेशन किससे रिप्लेस हो जाती है? जी से. क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma. और अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है तो a को रिप्लेस कर देते हैं g से, विच मीन्स अगर कहीं पे हमें फोर्स चाहिए और हमारे पास वेट गिवन है, तो हम इन दोनों को आपस में यूज कर सकते हैं. We have the option to use it only if object is moving with free fall or have no resistance. फोर्स का यूनिट भी न्यूटन्स होता है और उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं. वेट का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन्स. क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों के यूनिट्स भी क्या होंगे? सेम होंगे. फोर्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन ड्यूरिंग द लेक्चर. बट फॉर नाउ आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग. हमने अब एक टाइप ऑफ फोर्स पढ़ लिया है, वो किसका नाम क्या है? वेट. वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, मीनिंग उनका फिजिक्स में मीनिंग अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? सेम होगा. नाउ द लास्ट न्यूटन लॉ इज, व्हाट इज लॉ? लास्ट लॉ, न्यूटन्स का लास्ट लॉ क्या है? मोहम्मद? Sir, every action has a opposite reaction. यस. लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इसमें दो चीजें हमें याद रखनी है कि फॉर एक्शन एंड रिएक्शन टू बी इक्वल, ऑब्जेक्ट के मासेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तभी रिएक्शन एंड एक्शन फोर्स जो है वो इक्वल होगा. सेकेंडली, they always act in the opposite direction. ठीक है? Action and reaction always act in the opposite direction. Secondly, क्या कंडीशन है हमारे पास for action and reaction? They always acts in the opposite direction. They always act in the opposite direction. कभी भी सेम बॉडी के ऊपर, सॉरी, opposite direction and on different bodies. Action and reaction would never act on the same body. There must be two bodies on which action and reaction will always act. जैसे अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करें एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है. सर जो पुशअप इंजन है वो एक्शन है और उसका air force रिएक्शन हमारे reaction। पास एयर रेजिस्टेंस भी आ जाएगा. इसको फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं. सो दे ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. सेकंड बॉडी इसमें कौन सा आ रही है? एटमॉस्फेयर इज आवर सेकंड बॉडी. ठीक है? सो जो पॉइंट्स हैं यू मस्ट कीप देम इन योर माइंड कि कौन सी चीज किसको एक्सप्लेन कर रही है. नाउ क्विकली सी द डिफरेंट types of forces that we are going to study over the during the course. The very first one is weight. Weight always acts in the downward direction, and definition of weight is the object that pulls of the gravity. Weight always acts in the downward direction. Second is a force of friction that always acts
in the opposite direction of the applied force. Force किस direction में लग रही है? इस direction में. The force that will resist this forward motion is known as friction. अब फ्रिक्शन की मल्टीपल टाइप्स होंगी जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. तीसरा है एयर रेजिस्टेंस. अब वेट एक्ट्स ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो वेट की डायरेक्शन तो फिक्स है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. एयर रेजिस्टेंस कौन सी होती है? जो एयर अप्लाई करती है ऑन आवर मोशन. ठीक है. The resistance या friction offered by the air is known as air resistance. Again, वो भी opposite direction में लगती है मोशन के. जैसे कार वाली एग्जांपल में हमने देखा ना कि इंजन फोर्स फॉरवर्ड है, एयर रेजिस्टेंस बैकवर्ड लग रही थी. तो जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, एयर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन लगाएगी. लाइक दिस पैराट्रूपर इज कमिंग डाउन. तो इधर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? डाउनवर्ड फोर्स, उसका वेट, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? एयर रेजिस्टेंस. अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी. अपथ्रस्ट इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द वाटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेट. वेट हमेशा डाउनवर्ड करेगा तो अपथ्रस्ट हमेशा अपवर्ड एक्ट करेगा. So these are the 4 types of forces that basically or initially we discuss about in this chapter. Okay. So आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है, हम लोगों ने उसको डिस्कस करना है कि बैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं. एंड do you have any idea what balance and unbalanced forces are? You must have studied in the sciences as well. Fatma, what are balanced and unbalanced forces? सर फोर्सेस जिसमें मतलब जिसमें इक्वल मतलब फोर्स लग रही हो वो बैलेंस, और जिसमें अनबैलेंस मतलब अगर एक Yes. साइड से ज्यादा फोर्स है और एक दूसरी साइड से कम. If we have 10 Newton force to the forward side and 10 Newtons to the backward side, then these forces are known as balance. When we have zero resultant force, these forces are known as balance forces. And if we have force greater on either side, for example, I have 10 Newtons here and 5 Newton here, resultant force is 5 Newtons. We subtract if they are acting in the opposite direction, and we add if we have the forces in the same direction. So such a forces are known as unbalanced forces. The resultant force 0 hota hai. One thing we need to keep in our mind is that when resultant forces are 0, it means object is moving with constant speed. इनको फ्री बॉडी डायग्राम्स भी कहते हैं. Such diagrams are known as free body diagrams. And we need to draw, वो हमसे डिमांड भी कर सकता है कि हमें फोर्सेस को शो करना है दैट इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हियर in this parachute, the downward force is the weight of the object, upward force is the air resistance. So such type of diagrams are known as free body diagrams. So the examiner could ask us to draw the diagrams, sorry, to show the number of forces that is acting onto an object. For example, if I'm sitting down, तो हमारे पास कौन सी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी? ये. इफ आई एम मूविंग इन अ कार, तो मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी कि push of the engine forward and air resistance is acting in the backward direction. ठीक है.
We can also add the weight of the object, which is will always be acting in the downward direction. So such are diagrams in which we need to show the number of forces that are acting onto an object. We do not need to draw the object as it is. We can just draw a box and show the number of forces that are acting onto an object. For example, let me ask you, I am moving across water. ठीक हो गया? मेरा I am moving across water to this direction. What are the number of forces that would be acting onto an object? Can anyone tell? Sir, 4. F1 यहाँ पे लग रहा होगा, F2 यहाँ पे लग रहा होगा, F3 and F4. Can anyone name the name of the forces that I have mentioned here? F1, F2, F3 and F4. Up thrust, Upthrust upward लग रहा होगा. Downward क्या लग रहा होगा? Weight, forward force या push force भी हम कह सकते हैं. एंड बैकवर्ड क्या लग रहा होगा? वाटर की तरफ से जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं. जैसे हमने एयर रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा था ना, हेयर इन दिस डायग्राम, हमने इसको एयर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती है, फ्रिक्शन ऑफर कर रही होती है, उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं. सिमिलरली वाटर जो रेजिस्टिव फोर्स ऑफर कर रही होती है उसको ड्रैग फोर्स का नाम दिया जाता है. तो such diagrams are known as free body diagrams. So examiner in the question could ask us to show the number of forces that are acting onto an object. Am I clear about this? Yes. Okay. This is one of the important diagram that you need to keep in your mind whenever we are moving in a circular object. Sorry, in a circular path. This is me, and I'm moving across a circular path. The resultant force and resultant acceleration will always be towards center. ये अक्सर numericals sorry MCQs में आता है कि whenever an object is moving in a circular path, the resultant force and resultant acceleration will always be acting towards the center of that circular path. For example, अगर complete circular path है and I am present here, तो मेरी resultant force कहाँ act करी होगी and acceleration यहाँ पे act करी होगी. If I am present here, resultant force and acceleration यहाँ पे act करी होगी. इधर होऊंगा तो resultant force and acceleration यहाँ पे act करी होगी. Resultant force and acceleration will always act towards the center. अब यहाँ पे if I ask you to draw, अच्छा यहाँ पे एक और important चीज होती है velocity. अगर resultant acceleration is acting towards the center, then हम लोग क्या कहेंगे कि जो x velocity होती है, it's always tangent to the circle. If I have anti-clockwise motion, ठीक है, so velocity will always be tangent to the circle. ये दो points you need to keep in your mind whenever we are discussing the जो है motion of an object in a circular path. Okay. Also, there we need to keep another thing into our mind, that since the direction is changing at every point, acceleration जो है वो exist करेगी. Although velocity is constant, I mean speed is constant, because जब आप circular path में जा रहे हो तो speed constant होती है, but direction at every point is changing, so acceleration would exist. Did everybody get this point? That whenever an object is moving in a circular path, its force and acceleration will act towards the center. Acceleration is existing in a circular path, though the velocity, that is speed, is constant, but due to change of direction at every point, acceleration exists करेगा.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sorry, my mic was mute. Centripetal force is the force required to keep an object moving in a circle. So if something is moving in a circular path or curved path, the force necessary to keep an object in the circular path is known as centripetal force. ठीक है? If at any point centripetal force becomes zero, object would go tangent to the circle. जैसे हमने velocity की direction बनाई हुई है ना, इसी तरीके से. For example, अगर object यहाँ पे है and suddenly centripetal force becomes zero due to any reason, ठीक है? Object would go like this. If it's present here, object would go like this. It would go tangent to the circle if centripetal force becomes zero. Okay? Centripetal force भी towards center react कर रही होती है. Centripetal force is at itself, it has no existence, but something is being responsible for the centripetal force. कोई ना कोई चीज प्रोवाइड कर रही होती है centripetal force. Always. Like अगर for example road की friction में भी प्रोवाइड कर रही है, there are so many the factors जो कि centripetal force को प्रोवाइड कर रहे होते हैं. Centripetal force as it is खुद एग्जिस्ट नहीं करती है, इसके बिहाइंड कोई ना कोई और फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है फॉर दैट. बट दैट्स समथिंग दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. But for now, all these things needs to be kept in mind. These are the short terms, important points that we need to keep in our mind जब भी हम डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं. डायनामिक्स को डिस्कस करते हुए आई गेस हम लोगों ने एक और पॉइंट भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया है. वेलोसिटी व्हाइल गोइंग अप क्या होती है? डिक्रीज होती है. एक्सेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव होती है. एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होती है? बिकम जीरो, सो डज द एक्सेलरेशन. व्हेन इट्स कमिंग डाउन वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? पॉजिटिव. इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट प्रेजेंट. नॉट प्रेजेंट तो हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? वी कैन रिप्लेस ए विद G if G. air resistance is not present. और पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू आएगी. फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड आते हुए पॉजिटिव 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू यूज करेंगे, अपवर्ड जाते हुए -9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू यूज करेंगे. I would like to rediscuss the equations of motions which I have explained to you in the previous chapter as well, but since we are discussing it, we should write it again. What were the equation of motion? Vf is equals to Vi plus At. S is equals to Vt. 2As is equals to Vf square minus Vi square. And last is S is equals to Vit plus half At square. Here, Vi initial velocity, Vf final velocity, A is acceleration, T is time. S indicate distance, V again velocity, time, acceleration, displacement, final velocity, initial velocity, again S distance, initial velocity, time, acceleration, and time square. These equations are meant to be memorized. These equations will come in handy whenever we're solving the numerical questions. Okay? सर जो लास्ट वाला was S equation. is equals to S is equals to VIT, initial velocity into time, plus 1 by 2 AT square, acceleration into time square. Okay? जी सर. Do we have any question up till here? सर ये इक्वेशन नहीं समझ आई, इक्वेशन ऑफ मोशन. समझना नहीं है इनको, आपने याद करना है कि क्या फुल इक्वेशन किसके इक्वल है. दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT. इनको समझना नहीं है आपने, आपको सिर्फ इनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए. समझने का मतलब इस वे में होता है कि आपको इक्वेशन डेरिवेशंस डिस्कस होनी चाहिए, बट आपको ये एज इट इज याद करनी है. अगर आप कहते हो तो मैं एक दफा दोबारा हर एक का एक मीनिंग बता देता हूँ, बट यू हैव टू मेमोराइज दीज. सॉरी.
Okay, sir. You need to memorize these equations of motions. इसका मीनिंग बता Then final velocity, initial velocity, acceleration and time, distance, velocity, time. 2 is numeric value, A is acceleration, S is displacement, VF again final velocity, initial velocity, but with scarce. Then again distance, initial velocity, time, acceleration, and time square. Now, these points need to be kept in mind. ये जो S है ये डिस्टेंस के लिए है या डिस्प्लेसमेंट G, के लिए distance displacement, we can use interchangeably. A force has a direction shown by the direction of the arrow. A force can make the object change speed. A forward force makes its speed up accelerate, while a backward force makes it slow down. A force can change the direction of motion in which the object is moving. So force क्या-क्या कुछ कर सकती है? Force can change the direction. Force can speed up or slow down the object, or one thing that we need to keep in our mind, force can not change the mass of the object. ठीक है? बल्कि I should write it down the other way. So 3 points हमारे पास क्या है? Force can change shape of the object. Second point क्या है? Can change direction of the object, can speed up or slow down the object, and last क्या है? हुरैरा बताएंगे, एक और पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट क्या है हुरैरा? There is another point associated with force. Sir, it cannot be created nor destroyed. नहीं, वो तो लॉ ऑफ ये कंजर्वेशन वाला ऑफ point मोमेंट, वो तो लॉ ऑफ बाह्यत कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी है. चले अहमद बताएं, आई मीन मोहम्मद कमर आप बताएं. सर इसका थर्ड पॉइंट हाँ मतलब एक और भी पॉइंट होता है फोर्स से रिलेटेड. सर फोर्स एनीवन? वो एरो इसकी डायरेक्शन जो शो करते हैं. नहीं, वो तो हो गया ना. लास्ट होता है फोर्स कैन स्टॉप और मूव द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ force. Okay, so these 4 points needs to be kept in mind. Mass and weight के बारे में हम लोगों ने previously discuss कर लिया था. Mass की definition sometimes exams में आ जाती है. हम mass को कैसे define करते हैं? Amount of matter in a substance. Weight की definition हमने ऊपर की थी. Weight को कैसे define किया था? The force with which the earth attracts the objects towards its center. You can write the definition of weight. The weight of an object The amount is the of pull matter of in an gravity on object. it, and weight always act vertically downward. When two objects touch, there is a contact force. It is the contact force that stops you falling through the force. So contact force की definition, weight की definition, it's important. अब weight and mass का difference आप लोगों को सबको पता है. Weight क्या होता है? It's a constant quantity. It remains same wherever you go, whether in space, on in earth. Weight की value with respect to gravity क्या होती है?
चेंज होती है। ग्रेविटी को हम कहते क्या है? हाउ डू वी डिफाइन ग्रेविटी? ग्रेविटी यहाँ पे डिस्कस की हुई है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पुलिंग, सॉरी, द ग्रेविटी इटसेल्फ क्या होती है? द फोर्स विद व्हिच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. Let me see if the definition of gravity is mentioned somewhere here. If not, anyhow, the force with which the object is with which the earth is attracting the object towards its center. Always acts in the downward direction, and gravity produces acceleration. तो उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर उसने ये किया हुआ है. The acceleration caused by the pull of the Earth's gravity is called gravitational acceleration. उसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 meters per second square. वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज गिवन एज m g. m मास को शो कर रहा होता है, g ग्रेविटी को शो कर रहा होता है. g की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है. अर्थ पे जी की वैल्यू कुछ और होगी, मून पे कुछ और होगी, जुपिटर पे कुछ और होगी, मार्स पे कुछ होगी. तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू द आवर पोजीशन, हम जहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब मास और वेट में एक और क्या डिफरेंस है? वेट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है. मास को किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, वेट को न्यूटन्स में मेजर करते हैं. ओके. So these are the few points that you need to keep in your mind while working with that. और हमने कल ही फॉर्मूला भी किया था, F is equals to W is equals to mg. G का A से रिप्लेस होगा जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मूव कर रहा होगा. The points, the difference between the weight and the mass is also given in our book. The mass of the object is made in kilograms. And how much matter object is composed of. Weight of an object is in newtons and gravitation force that acts on the object. फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं. दिस इज अ फिजिकल बैलेंस. इसको यूज करते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए. एंड देयर इज स्प्रिंग बैलेंस जिसको हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो अगर हमें कभी भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे? फोर्स पर यूनिट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके. वेट स्प्रिंग बैलेंस से मेजर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मास मेजर हो सकता है. मास के लिए हम फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं. समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मेंशन आउट की कौन सी चीज किससे मेजर की जाती है. इसको हम स्प्रिंग बैलेंस भी कह सकते हैं, फोर्स मीटर भी कह सकते हैं. फोर्स मीटर भी एक होता है, उससे हम लोग वेट ऑब्जेक्ट वेट मेजर करते हैं. ठीक हो गया. Now, how many of you are familiar with the concept of terminal velocity? Pereira, what is terminal velocity? So when the velocity is zero, Nahi. Terminal velocity is explained the maximum constant speed with which object falls when air resistance becomes equal to weight of the object. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम्स में बहुत दफा आती है. इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है थ्रू द एयर, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट ऑब्वियसली उसका कांस्टेंट होगा. ठीक है. व्हेन इट स्टार्ट फॉलिंग, एयर रेजिस्टेंस इवेंचुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग. देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन वेट विल बिकम इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस. तब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. और रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो होता है, हमने डिस्कस किया था स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट. सो व्हेन रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, व्हेन वेट बिकम इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट फॉल्स विद मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड which is known as
टर्मिनल वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसे बनता है फातिमा? ये वाला होगा कांस्टेंट स्पीड का या ये वाला होगा? फर्स्ट वन और नीचे सेकंड वाला। वन, ठीक है। तो जब हम टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ Okay. बनाते हैं, इट गोज लाइक दिस कि स्पीड इवेंचुअली डिक्रीज हो रही है एंड बिकम्स कांस्टेंट। तो जिस पॉइंट पे आके कांस्टेंट होती है, दिस पॉइंट इज टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम एक पैराशूटर की बात करें, दैट अ पैराशूट इज गोइंग coming down, this is the diagram which I was discussing to you. आपको you need to understand this diagram. Weight is constant. ये जो arrowheads होते हैं ना, the length of the arrowhead बता रहा होता है उसका magnitude कितना है। अगर आप एक bigger arrow draw करोगे, एक smaller arrow show करोगे, तो bigger arrow bigger force को show कर रहा होगा, smaller arrow किसको show कर रहा होगा? Smaller force को। अब you could see in the diagram कि air resistance is less and वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इवेंचुअली एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड बिकम्स इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गया। ये फर्स्ट डायग्राम का पोर्शन ये शो हुआ हो रहा है, ये वाला। सेकंड डायग्राम का टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई। उसने पैराशूट ओपन किया, ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द पैराशूट सडनली एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। रेजिस्टेंस का सरफेस एरिया मतलब कितना एरिया वो कवर कर रहा है। फॉर अ मोमेंट सडनली एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, हमें अपवर्ड पुश मिलेगा। एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को कि रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में बिगर होती है, ऑब्जेक्ट का मोशन भी हम उसमें डिस्कस करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इन पर्टिकुलर केस में, सो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर इस तरफ फोर्स ग्रेटर होगी तो रिजल्टेंट फोर्स का एक्ट करेगी टूवर्ड्स राइट। सो वी कैन सी हियर कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैराशूट ओपन होने की वजह सडनली इंक्रीज हुआ। ये देखो, वी हैड दिस एंड देन इवेंचुअली एयर रेजिस्टेंस अगेन बिकम इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव किया एंड कम्स टू रेस्ट। ओके, दिस इज व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी इज। ये ग्राफ हम लोगों को अच्छी तरीके से, वी शुड मेमोराइज द शेप ऑफ दिस ग्राफ एंड किस तरीके से वेट्स एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में जो था वो बात किया था। देयर इज अ फोर्स व्हिच इज नोन एज टेंशन। कीप दिस इन योर माइंड। We have studied multiple types of forces and tension is one of it as well. Tension always acts whenever there is a string involved. अगर कोई भी object with the help of string attached है, string is to be must, string या कोई भी ऐसी चीज जिससे hang किया हुआ है, then the tension acts in the opposite direction of weight normally. And this is the point जो मैं आप लोगों को कल डिस्कस करवा रहा था कि the force required to keep an object moving in a circle, उस फोर्स को क्या नाम देते हैं ईमान? द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। व्हाट डू वी कॉल दैट फोर्स? एनीवन कुड आंसर? व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स? Centimeter force. Centripetal सेंटीमीटर। force. एंड हमने बताया था कि जिस पॉइंट पे आके सेंटीमीटर फोर्स जीरो होगा, दैट इज ये स्ट्रिंग ब्रेकअप हो जाता है, इट वुड गो टेंजेंट टू द सर्कल वेयर एवर इट इज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता तो इस तरह टेंजेंट टू द सर्कल जाना था, यहाँ पे होता ऐसे टेंजेंट टू द सर्कल जाना था, वेयर एवर द सेंटीमीटर फोर्स। अब इफ यू गाइस रिमेंबर, कल मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर फोर्स एज इट इज कुछ नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई चीज उसको प्रोवाइड करी होती है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। समटाइम्स फ्रिक्शन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, समटाइम्स कुछ और कर रहा होगा। हेयर टेंशन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। और टेंशन क्या है? फोर्स दैट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन of force
इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? टेंशन का नाम दिया जाता है। हेयर आप देख सकते हैं कि वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड लेफ्ट इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट। फ्री बॉडी डायग्राम्स हमारे पास ये होती है। यहाँ पे मून, मून में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? हु कुड टेल कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? लिखा भी हुआ है सामने। यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर मून टू कीप ऑर्बिटिंग द सर्कल। ठीक है, ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रेड सर्कल से शो किया हुआ है। दिस इज द resultant force which is centripetal force and is being provided by the gravity of the earth, and if any point the centripetal force becomes zero, object would go ऐसे। Can you keep this image in your mind, everyone? अच्छा, अब these are some of the points. The size of resultant force needed to make an object moving in a circle depends on its object mass, speed, and radius of the circle in which it is moving. Object mass bigger and the speed and radius stays the same. A bigger force is needed if the object mass is bigger, the object speed is bigger, the radius of the circle is smaller. You need to keep these points in mind. If an object is moving in a circle, the centripetal force would depend on these three parameters. And what are those parameters? Mass, speed, and radius of the circle. यानी कितना बड़ा circle होगा versus this circle. ठीक है? इस circle में the smaller circle, let me draw like this. This is the bigger circle. This is the smaller circle. इसका radius छोटा है, इसका radius is bigger. So smaller the radius, bigger would be the force required, and vice versa. Am I clear about these points? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। उसने कहा है कि जब भी आप सर्कल में मूव कर रहे हैं तो the centripetal force which is required to keep an object moving on a circle depends on three factors: mass of the object, speed of the object, and radius of the circle. You must have experience कि कभी भी आप लोग टर्न ले रहे होते, कभी आप गाड़ी की स्पीड तेज करके जाना, आप लोग महसूस करोगे you will be pushed off the track. अक्सर देखा होगा कि जब आप गाड़ी फुल स्पीड से कर्व पे मूव करते हो ना, आपको कंट्रोल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। एक्सपीरियंस किया है बॉयज? जब भी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे होते हैं, यू नीड टू ईदर स्लो डाउन योर स्पीड, या आपको कंट्रोल बहुत करना पड़ेगा, या आपको आउटर स्कर्ट पे जाना पड़ेगा ऑफ द सर्कुलर पार्ट। दैट इज बिकॉज ऑफ दोज पॉइंट्स के हमें इन तमाम चीजों को अपने माइंड में रखना होता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, कीपिंग मास एंड रेडियस सेम। हमें बाकी दो चीजों को कांस्टेंट रखना है। एंड इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्मॉलर, लार्जर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। सो इन द सर्कल बी हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू द सर्कल ए। ओके, अब यहां पे उन्होंने वो पॉइंट ओके अब यहाँ पे वो वाला पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया विच आई वाज टेलिंग यू कि अब आप जब सर्कुलर पाथ में जा रहे हो तो आपको अपनी स्पीड कैसे मेंटेन रखनी होती है यू कुड सी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार you will feel a bigger force when you travel faster round a bend in the road or when the bend is sharp. ये कल भी किसी ने सवाल पूछा था कि पुशिंग किस वजह से फील हो रही होती है, तो मैंने उसको बताया था कि आपका एक और पॉइंट होगा जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब हम ड्रायर में कपड़े डालते हैं,
A spin dryer works by spinning on its own symmetry. The wall pushes the clothes towards the center of the drawer. Water droplets pass out through the holes where they did not experience this force. You'll get to read other examples as well whenever we're discussing about these. These blue areas are important informations that will help you understand it. F is equals to ma की equation we have studied in the previous lesson as well. Say Newton's second law के respect से. And उसके सारे रिलेशनशिप भी डिस्कस कर लिए थे हम लोगों ने. क्या रिलेशनशिप है उसके? कि acceleration is directly proportional to force and acceleration is inversely proportional to mass. Greater force, greater acceleration, greater Sir. mass, lesser acceleration. Yes. हमें आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है. ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए आप सब लोगों को? सर्कल, मास एंड एवरीथिंग के. नाउ हियर अगेन उन्होंने फोर्स रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है. एंड यू कैन सी हियर के big objects are harder to accelerate than smaller. So if we double the mass of the object, the force will be halved. We need to double the force to give it the same acceleration. We context जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे theory के terms में लिखा हुआ है. So if you'll read this carefully, you'll get to understand the points that I explained you in the lesson. अच्छा, the force vectors and the acceleration vectors are in the same direction. ये point important है. This seems obvious when we are talking about the increasing engine force to make a car accelerate. Obviously, अगर resultant force and acceleration are acting in the same direction, तो हमारे पास speed क्या होगा? Increase होगा automatically. वही वो point discuss कर रहा है. If we want to increase the speed of the object, resultant force must act in the direction of acceleration. तो हमारे पास जो है object accelerate होगा fastly. Okay? Force की unit discuss किए हुए. Force has a unit of newtons, mass has a unit of kilograms, and acceleration has a unit of meters per second square. So इसका unit क्या बन जाएगा? Kilograms meters per second square. So 1 Newton in base quantity is 1 kilogram meter per second square. All of these units are base units. So अगर सब कभी someone asks, the examiner asks you to write your answers into base units, तो आपने इस तरीके से इसको mention out करना. Okay? उसके बाद there are few examples जिनको I'll take you back onto that. मेरा आज major है कि we start discussing about momentum. And what is momentum? How do you define momentum? It is defined as the property of the body due to its motion. Objects motion की वजह से जो property arise होती है, that property is known as momentum. As you can see here, the effect of force depends on two things: how big the force is and the time interval it acts for. So the momentum is defined as the property of the body due to which it resists any change. Sorry. The property of a body due to its motion is known as momentum. Welcome back, everyone. कहाँ तक मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच गई थी? कोई बता सकता है मुझे कि वेवल हुई जहां तक आपको आवाज आई मेरी? मोमेंटम का सेक्शन तक स्टार्ट हो गया था ना मेरा, उसके बाद ही मीटिंग वो डिसेबल हुई थी ना? जी. अच्छा, सो मोमेंटम कब अराइज होगा?
whenever there is a motion in a body. If there is motion in a body, momentum hoga. If there is no motion in a body, there will be no. Momentum is given as P. Symbol of momentum is P, and it is given as M into V. M is the mass of the object, and V is the velocity of the object. So as long as the velocity exists, the speed is existing, the object is moving, the momentum would exist. Okay? अब इसका यूनिट क्या बनेगा? मास का यूनिट क्या होता है ईमान? The kilogram. मोहम्मद कमर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का एक और यूनिट न्यूटन इनटू सेकेंड भी होता है, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है? वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होते थे, जल्दी से बताएं जरा। स्केलर क्वांटिटीज होते थे विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है? सो वेक्टर्स एंड स्केलर। नाउ मोमेंटम is also defined as, sorry, we have another definition of force here, जिसको हम average force का नाम देंगे। Average force is given as momentum, change of momentum per unit time। इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं, जब हम वर्ड्स में लिखते हैं ना, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। सो F is equals to delta P over delta T, ये इक्वेशन होगा, and above is the word equation. Now, how can we justify this equation? Is everyone familiar with this equation? F is equals to ma, Newton's second law, जो हमने थर्ड चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा हुआ है, acceleration is equals to v minus u over t. When I put this here, F किसके इक्वल आ जाएगा? m into v minus u over t. So it will become mv minus mu over t. mv indicates final momentum and mu indicates initial momentum. सर आपकी So आवाज सही नहीं आ रही। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को क्लियरली? यस सर। जी सर। और एवरीथिंग साथ साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आप लोगों को? अब जब भी हम फाइनल समथिंग फाइनल माइनस इनिशियल कहते हैं, उसको क्या वी नेम इट एज चेंज, और उसको हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। दिस सिंबल इज नोन एज डेल्टा, और जिसके साथ भी लगा होगा इट मींस समथिंग फाइनल माइनस इनिशियल। सो आई कैन राइट द अबव इक्वेशन एज F is equals to mv को मैं as final momentum and mu को as initial momentum over time, and I can write it as delta P over delta T. Are you guys clear with this equation? सर एक बार यूली दोबारा Yes. दोहरा दी। From the beginning or the last section?
lost. अब जब हमने a की जगह पे v माइनस u पुट किया, आई मल्टीप्लाइड m विद v एंड u. mv भी मोमेंटम है, mu भी मोमेंटम है, बट v इंडिकेट्स फाइनल वेलोसिटी, u इंडिकेट्स इनिशियल वेलोसिटी. सो ये फाइनल मोमेंटम बन जाएगा. दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनिशियल मोमेंटम. सो आई विल राइट pf as final momentum and pi as initial momentum. Since p means momentum, so it will be equals to mv. F indicates के final velocity and I indicates initial velocity. So pf minus pi change है, so I could write it as delta p, final minus initial. So f is equals to delta p over delta t. This f will be named as average force and change of momentum over time. यहाँ पे we discuss another thing which is impulse. Very important. Impulse is represented as f cross t. अगर हम इस equation को rearrange करें, the one we just discussed, ये वाली equation, f is equals to delta p over delta t. I multiply it with this. So f cross delta t is equals to delta p, which means average force multiplied by time is equals to change of momentum. So this f cross t is known as impulse and इसको कैपिटल I से इंडिकेट करता है. अगर हम impulse को डिफाइन करें, impulse is defined as the force that acts for a very short interval of time. For example, if we are playing cricket, the moment the ball touches the bat, उस टाइम पे bat जो force apply करेगा ball पे and ball will go away from the bat, that force would be known as impulse. The force that acts for a very short interval of time between contacts of two bodies is known as impulse. If you look at the formulas, here is given everything in your book. Average force, resultant force, delta P over T is momentum per unit time and all of this. For example, the moment it touches, the car touches this crumple zone इसको कहते हैं वैसे. तो जिस मोमेंट पे कार इस वॉल को टच करेगी, उस टाइम पे जो फोर्स एक्ट करेगी, that would be known as impulse. अब मैंने आपको मोमेंटम का एक और फॉर्मूला बताया था, सॉरी यूनिट बताया था, which was न्यूटन सेकेंड्स. तो अगर आप इस इक्वेशन पे फोकस करें, this equation, its momentum is equals to force into time. So force has a unit of Newton, time has a unit of second. So momentum का एक unit newtons into second भी हो सकता है. So if I open up this equation, I can write this equation as elaborated form में. F cross delta T is equals to mv minus mv. Final velocity, initial velocity, this is force, resultant force, and this is time. If we look in the solved example that we have here, focus on the solved equation. Solved example, sorry. A car of mass 600 kg is moving at 15 meters second. Calculate its momentum. Momentum का formula क्या होता है? M into V. Mass is given as 600 and V is given as 15 meters per second. We'll multiply it. We'll get the momentum of the body. Next में उसने बोला है, the driver accelerates generally so that a force of 30 Newton acts on a car for 10 seconds. Calculate the impulse. Impulse का formula क्या होता है?
F क्रॉस T. F is 30 न्यूटन, टाइम इज इक्वल टू दिस, हमारे पास 300 न्यूटन. एंड लास्ट में उसने आपसे पूछा हुआ है कि वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल मोमेंटम. अब if you focus on this equation that we have here, इसमें impulse किसकी इक्वल है? impulse equals to final momentum minus initial momentum. अब initial momentum हमारा क्या निकला था? 9000. impulse हमारा क्या निकला था? 300. उसने हमें final momentum कैलकुलेट करने को बोला है. So I'll rearrange the equation. So final momentum will equals to initial momentum plus impulse, and I'll have the final momentum of the equation. So that's how we take everything into account to get the required result. था मोमेंटम को डिस्कस किया था, एंड सो फार हमने जो इक्वेशंस डिस्कस किए थे उसमें से जो मेन इक्वेशंस थी वो क्या था कि मोमेंटम इटसेल्फ का फॉर्मूला वाज mv. दूसरा हमने पढ़ा था कि f इज इक्वल्स टू mv माइनस mu ओवर t. एंड थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था f क्रॉस t इज इक्वल्स टू mv माइनस mu. इसको हमने नाम दिया था impulse का, and we called this as change of momentum. So f क्रॉस t को I से इंडिकेट किया था और चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल्टा p से इंडिकेट किया था. हमने f इज इक्वल्स टू ma दोबारा पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड a को डिस्कस किया था एज v माइनस u ओवर t. If you guys have any question up till here, please ask me now, as long as we are able to talk to each other. सर आजकल इम्पल्स वाला बता देंगे. इम्पल्स अगर क्वेश्चन में कहीं भी पूछा होगा कि फाइंड आउट द इम्पल्स, तो हमने फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है. क्वेश्चन के अंदर अगर हमने चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया है किसी पार्ट के अंदर, मैं आज आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा भी. इफ वी हैव कैलकुलेटेड द चेंज ऑफ मोमेंटम एंड सेकंड पार्ट में 1 मार्क्स का वो क्वेश्चन देता है कि फाइंड आउट द इम्पल्स, so we would say कि whatever the answer of change of momentum is, it is also the impulse. या if we have given force and time, हम impulse calculate करते हैं, and in the second part they ask us to find out the change of momentum, so they both are equal to each other. जैसे कल हमने ये क्वेश्चन किया था ना, सॉल्व एग्जाम्पल किया था, where was it, जिसमें हमने चेंज ऑफ फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट किया था क्वेश्चन के अंदर. It was, चलो लेट मी टेक यू टू अ क्वेश्चन एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू टॉक. जैसे ये क्वेश्चन है, इफ यू कैन सी दिस एंड हेयर मी प्रॉपर्ली. अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा है द मास ऑफ द बॉडी इज 70 kilograms. द कार अप्रोचेज अ सॉलिड बैरियर एट 20 meters per second, which is its the initial speed. It crashes into the barrier and stops suddenly, which means इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? ये इनिशियल वेलोसिटी है, मैं इसको vi लिख देता हूँ, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, कॉज इट स्टॉप्ड सडनली. ठीक है. सबसे पहले उसने कहा है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द डमी बिफोर द क्रैश. बिफोर द क्रैश मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी. मास कितना दिया हुआ है? 70 kilograms, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 20. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 140. 140 है क्या 1400 बनेगा? सो यूनिट हमारे पास मोमेंटम क्या होता है? न्यूटन सेकंड. देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होगा हमारे पास. ठीक है. या अगर आप किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड लिखना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आपको स्टिल मार्क्स मिल जाएगा उस चीज का. ये पहला पार्ट समझ में आया सब बच्चों को, स्पेशली जूनियर्स?
जी सर। अब नेक्स्ट में उसने कहा है कैलकुलेट द इम्पल्स। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग एम वी माइनस एम यू का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो एम वी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और एम यू क्या हो जाएगा 1400। ठीक है, सो ये किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के इक्वल होता है। तो जो हमारा मोमेंटम का आंसर यहां पे आया, देखो मैंने कहा था ना 1 मार्क्स का सवाल होता है इन दोनों का, एक मतलब रेसिप्रोकेट हो जाता है ईदर वे। सो अब उसे नेक्स्ट पार्ट में इम्पल्स कैलकुलेट करने को बोला, तो इम्पल्स का आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर भी इसी की इक्वल होगा, बिकॉज एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का आंसर हमारे पास क्या आया था 1400, तो इम्पल्स का आंसर भी क्या आएगा, वही आएगा। अहमद पिकअप हुआ? नहीं है तो इसमें ये शायद पिछले वर्जन्स में होगा। अब जो चलते हैं सर एक नेक्स्ट। सर जो बार वो था टेस्ट, हम्म हम्म। टेस्ट को डिस्कस नहीं करना, किसको? टेस्ट जो था हमारा कल को। वी वी विल, जस्ट होल्ड ऑन, इंपॉर्टेंट चीजें पहले कर लें ओ, कि जो चीजें ओके कम्युनिकेट करनी है वो ओके। एज लॉन्ग एज हमारी मीटिंग इज वर्किंग, पहले मैं वो कर लूं। अगर टेस्ट डिस्कशन में मीटिंग बार बार ब्रेक होती भी है तो मतलब हमें कोई नुकसान नहीं होगा उसके अंदर। ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ? सर यस। सर इम्पल्स होता क्या है? ये फातिमा है ना? जी सर। थोड़ा आसरा करें क्योंकि आप कल आई नहीं थी, इस वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चंस में रिपीट होता रहेगा। इम्पल्स होता है बेसिकली एफ क्रॉस टी, फोर्स इनटू टाइम को इम्पल्स कहते हैं, और वो इक्वल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के। सर आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं सेंड की थी। यस बेटा, मीटिंग इतनी मुश्किल से हमारी कनेक्ट हो रही है, रिकॉर्डिंग तो बहुत दूर की। ओके, अब उसने हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, डीसेलरेशन। मल्टीपल टाइम्स आई हैव टोल्ड यू डीसेलरेशन का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, v माइनस यू ओवर टी। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी मोहम्मद कमर, व्हाट वाज द फाइनल 0, वेलोसिटी? और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 20 डिवाइडेड बाय 20। टाइम कितना है हमारे पास 0.20। ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा -20 ओवर 20 ओवर 100। 0.20 को करोगे फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा, यूं ये ऊपर चला जाएगा, 20 × 100 डिवाइडेड बाय 20, कैंसल आउट 1, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 विद नेगेटिव साइन। और डीसेलरेशन क्या होता है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती है, और नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है बच्चों, अब अगेन यू कुड सी यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो हम साथ में उसका यूनिट भी लिखेंगे। इम्पल्स के अंदर हमने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लिखा था, बिकॉज इन इम्पल्स इट्स नॉट नेसेसरी कि हम माइनस का साइन लिखें या ना लिखें, उससे हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर है? नाउ जी, वो आप कह रहे हैं ना मैटर नहीं करता क्या पॉजिटिव हाँ का साइन लगाए या नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव, आप आपका आंसर आ गया ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके आंसर्स पे। ओके, ओके सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी फोर्स कैलकुलेट करना है, और उसने हमें एक्सेलरेशन क्या दी हुई है इन दिस पार्ट 80 मीटर्स पर सेकेंड, मास कितना दिया हुआ है 70 किलोग्राम। हमें एवरेज रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक हो गया, मास इज 70 एंड ए इज 80, मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आंसर।
सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन उसने हमें मास दिया हुआ है 0.15, वेलोसिटी दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ द हैमर हेड व्हेन इट हिट्स द नेल, दैट इज फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियली क्या होगा उसका? 0 जब हिट किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 8 मीटर्स पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा? 1.2 न्यूटन सेकेंड। और अगर मैं इसको ओपन अप करके लिखूं तो 0.15 इंटू 8 माइनस 0.15 इंटू 0, कॉज इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। कज हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी ना हैमर की, जब हमने उसको हिट किया तभी उसमें वेलोसिटी आया ना। तो वी विल हैव आंसर्स। अब नेक्स्ट पार्ट का आंसर फजील करेंगे। इम्पल्स कैलकुलेट करनी है, क्या आंसर होगा इसका? What will be the answer to this question? Or anyone could तो इसके answer, but अंदर फोर्स जल्दी। मल्टीप्लाई हमने अभी भी क्या बाय टाइम होगा। डिस्कस किया था कि एफ क्रॉस टी किसके बराबर होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम के। हमने चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया प्रीवियस पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में भी उसने वही कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, तो एग्जैक्टली वही आंसर होगा। क्यों चेंज होगा आंसर? क्यों फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे? अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया ना कि फोर क्रॉस चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स के बराबर ही होता है। जस्ट प्रीवियस पार्ट का भी आंसर आपको याद नहीं है। अब एवरेज फोर्स किसकी इक्वल होती है? चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम के। चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या आंसर निकला ईमान? व्हाट वाज चेंज ऑफ मोमेंटम? 1.2। और टाइम की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है? 0.0015 सेकेंड्स। डिवाइड करेंगे और हमारे पास एवरेज फोर्स का आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी 800 न्यूटन। ओके, नाउ कम्स द टॉपिक दैट वी वर सपोज टू डू टुडे। तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ले गया, एंड दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Law of conservation of momentum states momentum of an object before and after collision would remain momentum of an object before and after collision would remain same। अब मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? What is the formula for momentum? No one knows the answer. Mass multiply by velocity. अब लेट्स कंसिडर इसका मास m1 है, सेकेंड बॉडी का मास m2 है। यहां तक क्लियर? इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज v1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज v2। तो अब इसका इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा? m1 v1, और इसका इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा? m2 v2। ठीक हो गया? सो m1 v1 प्लस m2 v2, ये बन गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अबू बकर प्लीज म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक प्लीज अबू बकर। अच्छा जी, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? मासेस में कोई चेंज आता है? हमने फोर्सेस का डिस्कस किया था, फोर्स डज नॉट चेंज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आफ्टर कोलिजन उनके मासेस तो सेम रहेंगे, बट उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। वेलोसिटी चेंज को हम शो करते हैं डैश से। तो सेकंड बॉडी की भी क्या हो जाएगी? v2 डैश। ठीक हो गया? अब ये बन गया
v1 dash initial final momentum of this first body and m2 v2 dash हमारे पास क्या बन गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी, और इनका सम would be equals to the initial momentum of the body. मैं ओपन अप करके लिखता हूं, m1v1 initial momentum of the body body 1, m2v2 किसको इंडिकेट करेगा, initial momentum of second body, और इनका सम जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा एज द इनिशियल मोमेंटम। अब m1v1 डैश क्या है, आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम, ये बिफोर कोलिजन है, ये जो दो बॉडीज ऊपर है ना, इनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इन बॉडीज का मोमेंटम बिफोर कोलिजन is m1v1 dash sorry m1v1 and m2v2, and m1v1 dash is final momentum of body 1 and m2v2 dash is final momentum, final p लिख देता हूं, of b2। तो इनका जो सम होगा इसको कंसिडर किया जाएगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या इक्वेशन यूज करनी है हमने, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। एक और इक्वेशन भी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि ये पिकअप हुई। क्वेश्चंस की एप्लीकेशन साथ ही हो जाएगी तो थोड़ा सा और भी आइडिया हो जाएगा कि इन इक्वेशंस को कैसे यूज करना होता। अब सर ये ये इक्वेशन डैश का क्या मतलब है? के मतलब बॉडी टकराने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी। अभी तो ये दोनों बॉडीज आपस में नहीं टकराई ना, ठीक है, अभी ये सेपरेटेड है, बट जब ये से कोलाइड कर जाएगी तो आफ्टर कोलिजन जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको v1 डैश कंसिडर किया जाएगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको v2 डैश कंसिडर किया जाएगा। जब वो एक दूसरे से नहीं टकराए हैं, when they have not collided with each other, तो उनकी वेलोसिटी सिंपल v2 एंड v1 कंसिडर की जा रही है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन के अंदर डाटा देखें, उन्होंने दे हैव सेड कि कोलिजन द टॉय कार कौन सी है इसमें से, the toy car engine is traveling at 0.32 meters per second, the mass of the engine is 0.50, ये देखिए, ये एक चीज ये रही है, और स्टेशनरी ट्रक हमारे पास क्या है, ये। अब इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी बच्चों, 0, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी उसने कितनी दी हुई है, 0.32। इनिशियल पॉइंट्स पिकअप हो गए। जी सर। अब उन्होंने कहा है मोमेंटम ऑफ द कार बिफोर कोलिजन, तो मास उसने हमें कितना दिया हुआ है, 0.50, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.32। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। 0.16। 2 मार्क्स आ गए। अगले में उसने बोला है जो स्टेशनरी ट्रक है उसका मास कितना है, 0.30, कंजर्वेशन ज्वाइंट एंड ट्रक इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। अब
जो मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बोल रहा था ना, दूसरा फॉर्मूला ये होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। और ये फॉर्मूला हमने कब यूज करना है? जब आपको ये स्टेटमेंट नजर आएगी कि बोथ द बॉडीज हैव ज्वाइंड आफ्टर कोलिजन। अब ऑब्वियसली ये दो बॉडीज हैं, दे हैव ज्वाइंड टुगेदर। क्या इन दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी या सेम वेलोसिटी होगी? वुड दे बी सेम मूविंग विद द सेम वेलोसिटी और डिफरेंट वेलोसिटी होगी ईच बॉडी की? दे हैव ज्वाइंड टुगेदर। तो इस वजह से जो वो v1 डैश और v2 डैश है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, और उसको हम इक्वल्स टू v पुट कर देंगे और इक्वेशन को दोबारा से अरेंज कर लेंगे। अब मुझे बताओ, पहले बॉडी का मास कितना था हमारे पास? मैं ऊपर थोड़ा सा ले जाता हूँ। इट्स मास वाज सर आपकी आवाज बहुत जा रही है। सबको इशू आ रहा है बच्चों? नहीं सर। नहीं शुक्र है नहीं। हम, वैसे लकीली अभी तक मीटिंग भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी हमारे पास क्या था? 0.50। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0.32। मास ऑफ सेकंड बॉडी क्या है हमारे पास? मैं 2 लिख देता हूं यहाँ पे, 0.30। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। स्टार्ट में वो रेस्ट पे था ना। फिर m1 प्लस m2, और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उसकी। सो हम क्या करेंगे? इसका आंसर तो हमें पता है, 0.50 इंटू 0.32 का क्या आंसर आया था? 1.6 या 0.16? 0.16 आया था। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। 0.50 0.30 क्या बन जाएगा? 0.80। और v, अब v हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको इस साइड पे ले जाके क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो 0.16 डिवाइडेड बाय 0.80 इज इक्वल्स टू v। देखो इसका क्या आंसर आ रहा है। आएगा 0.2 आएगा, बिकॉज ये 0.16 है, ये 0 है, तो इसमें सर एट आप टू इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, जब भी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन आएगा, हमने इन दो फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है। अगर बॉडीज आफ्टर कोलिजन ज्वाइन नहीं की तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर बॉडीज आफ्टर कोलिजन ज्वाइन कर गई तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चूंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बॉडीज हैव ज्वाइन टुगेदर आफ्टर कोलिजन, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी वाज गिवन एज 0.50। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0.32। मास ऑफ सेकेंड बॉडी वाज गिवन एज 0.30। और वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी उसने बोला हुआ है कि ट्रक क्या था हमारे पास यहाँ पे, ये देख सकते हैं स्टेशनरी है, यानी इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो मैंने उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया। अब चूंकि दे हैव ज्वाइंट टुगेदर आफ्टर कोलिजन, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। तो m1 मेरे पास क्या था? 0.50। m2 क्या था? 0.30। उसको हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। मैंने इक्वेशन को सब सॉल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.16 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इनको ऐड किया तो 0.80 आ गया। एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी तो हमने उसका एज इट इज पुट कर दिया। अब 0.16 प्लस 0, 0.16 ही रहेगा। ये 0.80 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके। पिकअप हुआ ये क्वेश्चन?